Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. In the last class we finished our chapter Relations and Functions. Today we are starting a fresh chapter, new chapter, that is trigonometry. But today we'll do the basic part, that is measurement of angle. Nothing like sin cos, it will be done in afterwards. So today we are doing trigonometry. We are starting trigonometry, but we are doing the basic part, that is measurement of angle. So I am starting with the term angle. Angle हमने पहले ही पढ़ा है in the junior classes, that what is angle? Measure of rotation of a given ray about its initial point. Suppose we are having this ray, suppose this is a ray, this is point O, this is point L, और ये रे जो है रोटेट हो गई, दिस रो इज रोटेटेड टिल यहाँ, ये रोटेट होने क्या हो गया, मान लो ये जो है रोटेट होकर यहाँ बन गई, ओ एम बन गई सपोज करो, और रोटेशन इस तरीके से हो गई. तो अब ये जो बना, ठीक है, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. ये अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द रे, this is that same ray that has been rotated. This is anti-clockwise. अगर नीचे जाए तो क्लॉकवाइज. तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल दिए. This line, the original line is called the initial side. This is called the initial side. And this is called the terminal side. जहां तक वो लाइन पहुंच गई रोटेट होके, this is called the terminal side. And the point at which the line is being rotated, that point is called the vertex. और ये बनेगा एंगल. तो ये यहां पे लिखा हुआ है measure of the rotation of given ray about its initial point, or that initial point is the vertex. This is the initial side, this is vertex. That line has been rotated to OP, has become now OQ, and that OQ is terminal side. This is initial side, this is terminal side. और इसको rotate किया हमने. This is anti-clockwise, this is clockwise, this is anti-clockwise. So this will be called as positive angle. If the rotation is anti-clockwise, that means we will say that the angle is positive angle. Otherwise, if the rotation is clockwise, clockwise मतलब जिस तरीके से क्लॉक चलती है, क्लॉक इस तरीके से चलती है. If the rotation is clockwise, then this is called negative angle. Anti-clockwise called positive angle. This was about the angle. पहले किया हुआ है हमने. Now, two angles we'll discuss. One in degree, other in radian. डिग्री हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, वैसे 0 से 90 के बीच में हमने किया हुआ है, बट डिग्री की बात करते हैं. व्हाट इज डिग्री मेजर ऑफ द एंगल? तो वी विल से ये रोटेशन हो रही है. एंगल कैसे बन रहा है? रोटेशन होने पर बन रहा है एंगल. एक रे है, वो रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वटएवर इट इज. तो उस हिसाब से एंगल बनता जा रहा है. ठीक है, ये इनिशियल साइड हो गई, जैसे जहां पहुंचे वो टर्मिनल साइड हो गई, जहां से रोटेट कर रहा है वो वर्टेक्स हो गया. ये सारा डिस्कशन हो गया. अब if rotation from initial side to the terminal side is 1/360th, ये मेन बात है, 1/360th of a revolution. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360th पोर्शन जो बनेगा, 1/360th पोर्शन मतलब ऐसे 360 पोर्शन बननी चाहिए पूरी. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360th पोर्शन जो बनेगा, that will be called as 1 degree. Because complete revolution में 360 degree होते हैं. So if rotation from initial side to terminal side is 1/3, अगर ये सिर्फ 1/360th है, we will call it as 1 degree. Anti-clockwise. अगर clockwise हो गया, that will be -1 degree. So if rotation from initial side to terminal side is 1/360th of the revolution, the angle is 1 degree. अब depending upon clockwise की anti-clockwise, clockwise में negative, anti-clockwise में positive. So this is defined to be 1 degree, 1/360th of the revolution. ठीक है. अब यहाँ पर एक टर्म आता है मिनट एंड सेकेंड. जो 1 डिग्री होता है दैट इक्वल टू 60 मिनट. 1 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? 60 मिनट. दैट मीन्स 1 मिनट को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 मिनट विल बी व्हाट? 1/60 डिग्री. 1 minute will be 1/60, 1/60th
part of the degree is called minute. 1/60th part of the degree is called 1 minute. Because 1 degree is 60 minutes, so 1 minute will be 1/60 degree. In the same way, 1 minute is 60 seconds. 1 degree is 60 minutes and 1 minute is 60. और भी छोटा हो गया, सेकेंड और भी छोटा हो गया. तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि भाई 1 second will be 1/60 minute. 1 minute is 1/60 degree and 1 second is 1/60 minutes. तो 1/60th portion, 1/60th part of the degree is 1 minute and 1/60th part of minute is 1 second. तो ये कन्वर्जन हम यूज करेंगे आगे कि 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड. दिस वाज अबाउट द डिग्री मेजर. अब एक बिल्कुल नई टर्म आई है, बिल्कुल फ्रेश टर्म, न्यू टर्म विच विल बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन ट्रिग्नोमेट्री एंड फर्दर, दैट इज रेडियन मेजर. अब इसको समझना है हमें, रेडियन मेजर. ये कंसेप्ट समझने वाला है, बिल्कुल बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है आगे की बात चीजें समझने के लिए. इसलिए मैंने सारा एक साथ लिख दिया यहाँ पर ताकि एक बार में सारा हो जाए. रेडियन मेजर. अब रेडियन मेजर क्या है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल. अब यूनिट सर्कल क्या होता है? सर्कल विद रेडियस 1 यूनिट. सर्कल विद रेडियस 1. ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना है? 1. और उसने ये इसको बोलते हैं आर्क लेंथ. ये आर्क लेंथ भी 1 है, आर्क लेंथ भी 1 है और उसका रेडियस भी 1 है. तो ये जो एंगल यहां बनेगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बनेगा प्लस का 1 रेडियन. 1 रेडियन कब बनेगा? जब आर्क लेंथ भी 1 है और सर्कल की रेडियस भी 1 है. सेम काम है, आर्क लेंथ इज 1, रेडियस ऑफ सर्कल इज -1, बट द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, सो द एंगल इज -1 रेडियन. If arc length will be 2, arc length जैसे यहाँ पर 1 थी तो 1 रेडियन बन गया. Arc length will be 2 and the radius is 1, the same unit circle. Then the angle, if we are taking it as anti-clockwise, angle is 2 radian. जैसे जैसे arc length बढ़ेगी, radius same वही 1 है, तो अपने आप ही वो क्या बढ़ता जाएगा? रेडियन बढ़ता जाएगा अपने आप, 2 रेडियन. और आर्क लेंथ बढ़ेगी तो और आर्क लेंथ बढ़ जाएगी. तो ये डिफाइन किया गया है रेडियन मेजर फॉर इन केस ऑफ यूनिट सर्कल. अभी मैं बताऊंगा, इन जनरल बताऊंगा कि अगर वो 1 नहीं है, अगर इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज नॉट 1, तो कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी अभी आएंगे. फिलहाल डेफिनेशन के लिए बता दिया कि अगर रेडियस ऑफ सर्कल 1 है और लेंथ इज 1, तो रेडियन 1 रेडियन, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन. इन विच डायरेक्शन? दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव. अब यहां पर लेंथ को बढ़ा दिया, 2 कर दिया, तो यहां पर रेडियन हो गया 2. अच्छा, अब यहां पर पढ़ते हैं आगे. ये कह रहा है एज सर्कमफ्रेंस ऑफ यूनिट सर्कल. भाई जो यूनिट सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr. और r अगर 1 है तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2π. सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2π. One complete revolution of the initial side subtends an angle of 2π radian. Obvious. जब complete revolution पूरा हो जाएगा, one complete revolution of initial side subtends an angle of 2π radian. Obviously, complete क्या हो जाएगा? 2π, क्योंकि इसने पूरा डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? आर्क लेंथ क्या हो गई? 2π. जब आर्क लेंथ 2π हो गई, when the arc length is 2π, तो 2π upon the radius, that is 1. जैसे ये 2/1 से 2 आ गया, एंगल 2 रेडियन आ गया. 3/1 से 3 आता, दैट मीन्स ये 2π है, 2π/1, दैट विल गिव मी द एंगल एज 2π रेडियन इन केस ऑफ यूनिट सर्कल. ठीक है. अब यहां लिखा है जनरल. अब मैंने यहां पर कर दिया जनरल. अब यहां पर जनरल मतलब क्या हो गया कि अगर रेडियस 1 नहीं है, r है, वही मैंने लिखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, and an arc of length r, in a circle of radius r and an arc of length r, in a circle of radius r and an arc of length r will subtend an angle of 1 radian. मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर थोड़ा सा मैं ऊपर से रब कर देता हूं, ऊपर वाला डिस्क्राइब हो चुका है,
ऊपर वाला समझा चुके हैं। तो भाई अगर सर्कल, आई एम मेकिंग अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल एंड द रेडियस आई एम टेकिंग इज आर, दिस इज आर, in a circle of radius r and an arc of length r, arc of length r, arc length भी r है। यहां पर 1 1 था तो रेडियन 1 हो गया, यहां पे अगर रेडियस r है और आर्क लेंथ भी r है तो एंगल बनेगा 1 रेडियन, 1 रेडियन, इस तरीके से एंगल विल बी 1 रेडियन, एंगल विल बी 1 रेडियन, ठीक है। अच्छा अब इसको और जनरल करते हैं कि यहां पर हमने इसको सेम लिया, सिंपल सी बात है, अगर ये 2r हो जाएगा तो 2r अपॉन r एंगल 2 हो जाएगा, अगर ये 3r तो वो 3 बन जाएगा। तो इन जनरल क्या हो गया कि इफ सपोज वी आर हैविंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड द आर्क लेंथ इज l, in a circle of radius r an arc of length l will subtend an angle of l by r radian, l by r, देखो r अपॉन r से यहां बना रहा है, यहां पर 1 अपॉन 1 से 1 आया, ये तो खैर नेगेटिव है, नेगेटिव में भी कोई बात है, 2 अपॉन 1 से 2 आ गया, दैट मीन्स आर्क लेंथ dividing by the radius of that circle, by the definition of this radian measure, we can say that arc length divided by the radius, so the angle formed will be L by R. In this case the angle formed, suppose this is angle theta, this angle theta will be given by L by R, this angle theta will be given by L by R. But very important thing, most important thing, whenever we will use this formula or this definition, this theta will always be in radian, because this is by the definition of radian only, by the definition of radian only. So भाई हमने लिखा है in a circle of radius r and arc length l, जैसे यहां पर r अपॉन r से 1 बना, अगर ये 2r हो जाता, this is 2r, this is r, तो ये क्या बनता 2 रेडियन, 2r by r से, तो ऐसे ही l by r वो क्या बन गया इसका थीटा, थीटा इक्वल टू l by r, थीटा किस में होगा रेडियन में, थीटा विल बी इन रेडियन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, व्हेन पॉजिटिव व्हेन नेगेटिव, ठीक है। वी आर टेकिंग द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ यूनिट सर्कल हैविंग सिंगल आर्क लेंथ हैविंग 1 यूनिट ऑफ आर्क लेंथ, एज सर्कमफ्रेंस ऑफ यूनिट सर्कल 2 पाई है तो उसका वो ऑब्वियसली जो वो बनेगा पूरा का पूरा एंगल 2 पाई बन जाएगा। ये डिस्क्राइब किया कि अगर रेडियस r है और लेंथ भी r है तो 1 रेडियन बनेगा, ये चीज क्या है, ये चीज यही तो है। और फिर और प्रिस्क्राइब किया गया और अच्छे से बताया गया, तो भाई हमने उस लेंथ को और चेंज कर दिया l, दैट मींस l by r विल बी थीटा। तो ये एक रिलेशन हो गया, थीटा इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू, लेकिन ये थीटा किस में होगा रेडियन में, आर्क लेंथ, इसको ऐसे बोल देंगे, मान लो ये a है, पहले ये रब कर देते हैं सारा, थीटा इज इक्वल टू, जैसे मान लो ये दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, तो इसको बोल देते हैं थीटा इज इक्वल टू ए बी आर्क अपॉन आर, ऐसे ए बी आर्क, ये मतलब आर्क का साइन होता है। अगर आप कह रहे हो ए बी, सिर्फ ए बी है तो ए बी वो हो जाएगा कॉर्ड, दैट विल बी ए बी कॉर्ड लाइक दिस, लेकिन मैंने ए बी के ऊपर ये लगा दिया है तो क्या ए बी आर, जो कि मुझे क्या दे रखा है एल दे रखा है, तो एल बाय आर बन जाएगा। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, बिकॉज एल इज द आर्क लेंथ ऑफ दैट ए बी at which that angle has been made. So we have discussed very important thing regarding the degree measure, then the radian measure. Now we'll do the relation between degree and radian. तो सिंपल सी बात हमने पहले पढ़ लिया कि कंप्लीट रेवोल्यूशन में एंगल क्या बना 2 पाई, और वहां से क्या बना 360 डिग्री। कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिग्री में बन गया 360 और कंप्लीट रेवोल्यूशन में रेडियन में बन गया 2 पाई। तो आई विल से दैट 2 पाई इज इक्वल टू 360, दैट मींस वी कैन से 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। सो वी कैन से दैट पाई रेडियन is given by 180 degree. So we used to say that pi radian is given by 180 degree. ये रिलेशन बन जाता है।
कि जो पाई रेडियन होता है, ये पाई क्या है, रेडियन, पाई रेडियन is given by 180 degree. So on the basis of this, what we used to do, we used to find the relationship. Number one, degree measure is given by, that means suppose we are given a radian measure, we need to find the degree measure of that. तो degree measure कैसे होगा, जो radian measure आएगा, radian measure will be multiplied by, मुझे डिग्री चाहिए, 180 अपॉन पाई, बिकॉज पाई इज 180 डिग्री, हमने पढ़ लिया पहले. इन द सेम वे रेडियन मेजर will be defined as degree measure multiplied by radian चाहिए, pi by 180. This is very important. Whenever we need to convert degree measure into radian and radian into degree, we will use these two things. For example, I am taking very simple example. Main example we'll do in the next class. Suppose I am saying we are having pi by 15. This is radian. This radian into degree. हमें change करना है. Degree चाहिए. We need degree. That means we need this degree measure. What is radian measure? Pi by 15. तो pi by 15 multiplied by 180 by pi. तो 180 by pi. Pi से pi cancel हो गए. That means this will be 12. 12 degree is the required answer. We'll do main question, थोड़े बड़े question we'll do in the next class. Today just I am defining the degree radian, so I am taking simple examples. And suppose we are having degree and we want radian. Suppose we are having degree, that is suppose we need to find 75 degree into radian. So what you will do, 75 multiplied by, this is degree, you need radian, this is radian, so 75 multiplied by pi by 180, 15 5s are 15 12, so I will get 5 pi by 12 radian. 5 pi by 12 radian. Yes, answer. So this was just the introduction of angle, degree measure, then radian measure, then conversion of degree and radian. Simple, basic. We will do the questions based on this topic tomorrow. Then we'll go to the inverse trigonometric functions, sine, cos, tan. Then we'll do towards that. Okay. आज तक इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही है. ठीक है. Thank you.